تمام سامعین اور سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم دیکھیے، السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ نے عنوان دیا ہے، تو ظاہری ہے کہ جیسا حضور اکرم نے اور اس کے بعد مولا علی اور تمام ائمہ اطہار نے شہزادی کونین کی جو عظمت بتائی ہے، ہم لوگوں کی کیا اوقات کہ ہم ان کی عظمت بتائیں، بہت جو ان بہت سے انہوں نے ہمیں بتائی ہے ان کی عظمت، جزاک اور جو اللہ۔ رب العالمین نے قرآن شریف میں ذکر ہے، تو وہ جو علماء کرام اور خطبہ کے ذریعے انطلق ہوتی، اس سے تو تقریباً ہر شیعہ واقف ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں اتنا دوسروں تلک بھی ہم نے پہنچائی ان کی سیرت بہت اور اچھی بات۔ ان پر ہوئے مظالم، ہے نا؟ اس میں ہم کہاں تلک ہماری کوششیں رہیں، اتنا ہم اور اگر غفلت رہی تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ سوال میرا یہی اور تھا مان بھائی، جزاک اللہ۔ جی جی، اور اب جو ہے وہ کیا صورتحال ہے موجودہ دور میں؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جو ابھی ابو ذر صاحب نے جناب شبیر وارسی صاحب سے سوال بھی پوچھا تھا، اور وہ جو انہوں نے اس کا سبب بیان کیا، وہ سبب بغض و حسد کا تھا کہ عظمت جو ان کی قرآن شریف میں یا اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اس کے نتیجے میں جو دوسروں کے دل میں بغض پیدا ہوا، وہ اس کا سبب تھا۔ لیکن ظلم کے اوپر سے لوگ آمادہ ہوئے، اور ظلم کیوں ہوا، اور آج جو ہم ان کے قاتلوں کا نام لینے سے ڈرتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، اس سب کا سبب دیکھیے یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، کہیں نہ کہیں اس سے میں نے ایک بار ایک پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ بھی، یعنی ہمارے بزرگ بھی، یا اس وقت کے جو محبان اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں، یہ عافیت پسندی اور مصلحت پسندی کے تحت ہوا۔ بہت اور عمدہ۔ میں اپنی بات کی تصدیق میں اس کی بات کرتا ہوں، اور کوئی ہلکے آدمی کا نہیں۔ جب ابھی جیسا کہ یہ بتا رہے تھے، کربلا میں 40 کے موقع پہ میری ملاقات آیت اللہ عظمی شیخ بشیر نجفی صاحب سے ہوئی، تو انہوں نے یہی سب جو میری خدمات رہی ہیں ناچیز کی، اس کی بہت تعریف اور توصیف اور دعاؤں سے نواز رہے تھے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ حضور، آپ تو ہمارے لیے نعمت ہیں، کیونکہ آپ اردو جانتے ہیں، ہم براہ راست اپنے مسائل اور دینی مسائل ہوں کہ سماجی ہوں کہ ملی، اس کے لیے آپ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا سبب ہے کہ جو خود اردو داں علماء اور خطبہ حضرات ہیں، وہ آپ کو اس طرح متعارف نہیں کراتے ہیں؟ حتیٰ کہ ابھی آپ پہ ایک بات آئی تھی، تو جو آپ کے وکیل تھے یہاں ہندوستان میں، وہی خاموش رہے۔ تو کچھ دیر تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں، جو علماء کا انداز ہوتا ہے، باتیں کی، اور یہ پھر اچانک سے انہوں نے یہیں پہ تان توڑی، جس میں میری بات کا جواب تھا کہ اگر قریش کے 50-60 حضرات بھی مولا علی کے ساتھ ہوتے تو مسند پہ یہ گدھے بیٹھتے۔ واہ واہ واہ! یہ جملہ آیت اللہ بشیر نجفی صاحب یہ دامت آیت العالیہ۔ اللہ بشیر نجفی صاحب کا جملہ ہے، میرا نہیں واہ ہے۔ واہ! یہ تو میں اپنی بات کی، جو میں نے بتایا کہ اس وقت بھی، چاہے وہ ایک شہزادی کے در پہ، وہ پہلو پہ
दरवाजा गिराए जाने और आग लगाए जाने का वाकया नहीं, तमामी अइम्मा का जैसा ये वो कर रहे थे। उसके बाद मौला अली से शुरू हुआ वो सिलसिला, और 11वें इमाम तक राज रहा। उसका सबब यही बात है। और मैं उसके उसमें मौला अली का एक कौल और नकल करना चाहूंगा कि मौला का फरमाना है, उलमा मुझसे बेहतर जानते हैं, कि बातिल परस्त ताकतें जो होती हैं, बातिल परस्त अफराद जो होते हैं, वो फकत 10% होते हैं और हक पसंद 20% होते हैं, और 70% गैर जानिब हजरात, जिन्हें आजकल कहा जा रहा है गैर जानिबदार, आम लोग। है ना। एक फोन आया जा रहा है। बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे हमारा अब्बास साहब, वफा भाई, हाँ, लेकिन आवाज उनका आ रही है? वो फोन अभी कट जाएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी अमान भाई, आवाज आ रही है, बात आप कंटिन्यू हाँ, रखें, बस तो आवाज आ मेरी रही बात जा रही है, कट। जी जी। तो जब ये 70% अफराद अपनी आफियत पसंदी में हक के साथ नहीं आते हैं और खामोश रहते हैं, जी तो वो 80% हो जाते हैं। भाई, वाह वाह, मेरी आवाज आ रही बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मान भाई। है ना। और वो हक पे गालिब आ जाते हैं, मतलब ये दबा लेते हैं या जुल्म करने के लिए आमादा हो जाते हैं, या हक पसंद लोगों को वो करने के लिए, बहुत बहुत अच्छा गोशा उठाया है, बहुत अच्छी बात है है मौलाली ना। का सवाल। तो उसमें आपने ये मसला है। तो वो सबब जो है वो ये है। बेशक। अब आप देखिए कि अभी आप उसके बाद की उसमें आइए, जन्नतुल बकी के ऊपर रौदे की शहादत को 100 साल हो गए। जी जी। इस दरमियान भी अब तो ये दौरे हाजिर है, और वो रहा उसमें बहुत अरसे के बाद हमारे एक मर्जे को मौके पे वो होता था एक सालाना एहतिजाज, और लोगों ने किताबें भी लिखी और ये भी, लेकिन अवामी सतह पे उसको उठाने की काल आयतुल्लाह उज़्मा वहीद खुरासानी ने ईरान से दी। सही। और यहाँ भी हुआ सबसे पहले, जैसा कि अभी वफा साहब बता रहे थे कि मैं चारदा मासूमीन के में 13 के उस पे शहादत पे और बाकी की विलादत पे ज़मीमा देता हूँ। तो तब से मैंने खुसूसी नंबर, जैसे मुहर्रम नंबर निकलता है, वो शहजादी की शहादत पे अज़ाए फातमिया के दौरान शाया करना शुरू किया। जजाकल्ला। और ये कोशिश अभी हाल में वहीद खुरासानी साहब के काल देने पे फिर से इस जानिब अवामी सतह पे जो होना चाहिए था वो काम शुरू हुआ। और इसकी भी अभी मैं आपके शहर से वो बताता हूँ कि जब दोबारा से मौसवी साहब का बम्बई आना शुरू हुआ लंदन के पासपोर्ट पे, तो इत्तेफाक से पहली बार जब वो आए तो मैं वहीं था, और मोहिब नासिर साहब का मेरे हमें फोन आया कि आगा कहाँ हो, तो मैं इत्तेफाक से वहीं था। मैंने कहा बम्बई। तो उन्होंने कहा आ जाइए, जरा सा मौसवी साहब से मिल लिए, और हम लोगों की मीटिंग शुरू होने वाली है। ये वाकया मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें सब आप हजरात के सवालों के जवाब मुझसे हैं, सीधे सीधे। तो हाल ही में वो फातिमिया नंबर छाया हुआ था, वो मैं एक लेता हुआ उनके पास चला गया। वो उसमें देखने लगे, तो उसमें खुतबा फदर छपा था, तफसीली पूरा शहजादी का खुतबा है। जजाकल्ला। आज भी मेरा दावा है कि अवामुन्नास, अभी गैर कौमों को तो छोड़िए, शियों में भी मेरे ख्याल में 70% हजरात बाग फिदक का तो सब नाम जानते हैं, खुतबा फिदक नहीं जानते होंगे। उलमा हजरात और सच्ची ये और अच्छी बात है, बात है। बहुत सच्ची और बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात है। हाँ, तो वो उसे देख के पढ़ रहे थे। इतने में अकबर रतनसी साहब आने वाले थे, उस कुछ लेट हो रहे थे, तो उनका फोन आया
तो मुहिब नासिर साहब मरहूम ने उनको दे दिया। तो वो उनकी बात, उन्होंने कहा मैं पहुंच रहा हूं, तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये सहाफत है, आप लोग पहुंचते हैं। तो शायद उन्होंने उधर से कहा होगा कि वो उर्दू में है और ये है। तो वो जोश में खड़े हो गए मूसवी साहब, कहने जज़ाकल्लाह। तुम उर्दू हिंदी करता है, ये गैरों को खुतबा फिदक पढ़ा रहे हैं। वाह तो वो विजन है एक आलिम दीन का, कि बेशक। उनको मालूम है कि हमको मैसेज को शहजादी के उन पे जो जुल्म हुए हैं और उनकी जो सीरत है, ये गैर कौमों को बताने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। और जैसा अभी असलम साहब फरमा रहे थे कि हर तरह का जो भी मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे डिजिटल हो, हर एक की अपनी अहमियत है। और जरूरत है कि जो भी तबलीग के जराए हों, मैं मिंबर के, भाई मिंबर तो कदीम ही चला आ रहा है 1400 साल से, वो भी एक तबलीग का जरिया है। तो हर जो भी मुमकिन तबलीग के जरिए मैसर हैं, आगे और भी कुछ दुनिया में आए, उनसे जो है वो शहजादी की सीरत और उन पे हुए मजालिम को हमें दुनिया को बताना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए उलमा को दानिश्वरों से और सहाफ़ी हजरात जो अपनी कौम के हैं उनसे राब्ता करके कोशिश करना पड़ेगी। अब उधर साहब गवाह हैं, इन्हीं ने मुझसे वहाँ कहा कि भाई यहाँ अज़ाए फातमी पे वो हम जा रहे हैं, हैदराबाद के लोग हैं, वो मुझसे कहते हैं कि प्रोग्राम करने की, जब तक एसएनएन चैनल ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था या शुरू भी नहीं हुआ था, 2 साल पहले की बात जी है या 2.5 साल, शुरू हो जी गया होगा तो। लेकिन तो मैंने इनसे यही कहा था कि भाई इसकी ज़रूरत है और बड़े पैमाने पे ज़रूरत है। अगर जजाकल्ला उन लोगों जजाकल्ला को मान भाई। ख्वाहिश होगी तो इसको आगे इंशाल्लाह उसमें मशवरे भी दिए जाएंगे और भी कोशिश की जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असलम साहब और वहाँ अमेरिका में हमारे वो हैं महबूब साहब। महबूब भाई, ये लोग जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं उस वो काबिल तहसीन है। और हम सब का फर्ज बनता है कि इसको आगे बढ़ाएं और दुनिया को शहजादी की सीरत से और तमाम आइम्मा हजरात से की सीरत से और उन पे हुए मजालिम से वाकिफ कराएं। ये हम लोगों का फर्ज है। और इस सिलसिले में मेरे लायक जो खिदमात हैं वो हम लोग अपनी बहुत औकात अच्छा में भाई, बहुत कर रहे अच्छा, हैं। वाह वाह। बाकी आपके मशवरे से आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह अल्लाह